Yo, welcome back to my another vlog. And for your kind information, today is our exam, and this is going to be our last exam of psychology. And you can see how it is done. मतलब कि ये पूरा साल जो है निकल चुका हैगा, यानी कि आज जो हैगा सितंबर की 24 तारीख हैगी, और देखो कि कितनी जल्दी ये साल निकल गया। मतलब कि भाई सितंबर आ गया, सितंबर भी ऑलमोस्ट इट इज़ गोइंग टू ओवर, एंड देन नेक्स्ट इज अक्टूबर, देन ओनली 3 months are left, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड हाउ फास्ट द टाइम इज मूविंग। आई जस्ट रियलाइज दिस वाइल मेकिंग द वीडियो। मतलब कि अभी कैमरा चालू किया था कि मेरे को पता चला कि भाई कितनी जल्दी से समय बीतता है। मतलब मैं सोच ही रहा था कि भाई सितंबर की 24 तारीख हो गई है, फिर अचानक से दिमाग में आया कि हाँ भाई अब 3 ही महीने बचे साल ख़त्म होने में। तो देखो मतलब कितनी तेज़ी से समय निकलता हैगा। अब इस साल के अंदर अंदर कोशिश करेंगे कि हम लोग कुछ मतलब कि मतलब मेरा मतलब यही था कि सिंपली अपन ज़्यादा नंबर लाएंगे अब की बारी। तो मतलब शब्दों से सैडनेस झलक रही हैगी, तो तुम लोग समझ सकते हो कि इस बार जो है थोड़ी बहुत मतलब ऊपर नीचे हो गया। और देखो अभी जो है टाइम हो रहा है सुबह के 7 बजने में कुछ 15 मिनट आएंगे। तो अभी जो है नहा धो के तो रेडी हूँ मैं, बस खाना खाना रह रहा है। खाना खा के तेल लगा के फिर अपना निकल पड़ेंगे स्कूल के लिए। तो अभी देखो मैं यहाँ पे आया था बिल्ली को दूध देने के लिए, पर बिल्ली तो है ही नहीं बिकॉज ऑफ माई मिसफॉर्चून। सो माई ब्रदर विल बी हैंडलिंग इट लेटर ऑन। सो राइट नाउ आई वॉज जस्ट फाइंडिंग a handkerchief for myself, and yes, of course I didn't got it because handkerchief तो तुमको पता ही है कितनी तेज़ी से चोरी होती है घर में। तो अभी जो है मम्मी ये चल के मांगते हैं हैंडकरचिफ, फिर खाना खा के निकलते हैं। और आज जो है साइकोलॉजी का पेपर हैगा, जो कि अपना लास्ट पेपर भी है। तो इसके लिए मैंने जो है बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी हैगी। तो देखते हैं कैसे जाते हैं। Yo, I appeared again, and at this time it is something you can say 4 p.m. of the evening, means evening is going to happen in I think that evening time happens from 4 p.m. or 5 p.m. So you can see that evening is going to happen, and I had returned from school at 12 p.m. and after that I had eaten the food, and you can see that my cutlets are here only, means I had just eaten the food, and after that I had gone to a sleep, means I had woken up at 3:30, and after that eaten my second meal, and after that I am making my vlog. So I have just slept for the whole day, means from 12 to 4 I had just slept because I was a little bit tired because of the exam, and after the exams got over I got a little bit free, so just I got to a good sleep. And after completing my sleep at this time I was just planning to make a good plan for my upcoming pre-boards, means I had set a target in the previous video of scoring more than 65 plus marks in the pre-boards, which are going to happen in you can see November, and pre-board second will be held in January. So I think that the pre-board second will be happening in January. So I had just set a goal in the previous video of achieving more than 65 plus marks. So I was just thinking to start my syllabus from today only. So I have made a plan to study only English after 10:30, means on everyday basis I will study only English after 10:30 p.m. only English. No other subject will be included in this. This is how our English will be completed from 10:30 to 11:30 or 11:40, at which time at 11:40 I go to sleep because at 6 in the morning I have to wake up for the school. So I have set very simple targets of making 65 or 70 marks, and of today's exam of psychology I would say that the exam was very easy because you can say that ma'am had just asked the questions
in a indirect manner, and all we need to understand. All we need to do was to understand the questions and then answer them accordingly. So the questions will be indirect in the boards also. So I have just prepared the marks scheme for my pre-boards, and now I'll be starting for my you can say pre-board. मीन्स आज से तैयारी शुरू कर रहेंगे। तो सबसे पहले जो है 5 सब्जेक्ट है हमारे पास, तो 5 में से 4 तो बड़े रहेंगे और एक इंग्लिश छोटा आएगा। मेरे पास सबके क्वेश्चन बैंक्स पढ़े रहेंगे, सबके नोट्स पढ़े हैं, सारी NCERTs अंडरलाइंड है। अब उनको अच्छे से बस पढ़ना बाकी है और फिर स्कोरिंग करेंगे। मतलब कि 5 टास्क रहेंगे हमारे पास, जिसको हमको कंप्लीट करना है कुछ 1.5 महीने में। तो देखते हैं कि कैसे अपना निकलता है टाइम। और हाँ, आज हम लोगों को 25 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं अपनी ट्रेनिंग लगातार करते हुए, यानी कि 25 दिनों से लगातार रनिंग कर रहा हूँ मैं बिना एक भी दिन गैप लिए। तो हाँ, अपनी आज 25 डेज़ का स्ट्रीक कंप्लीट हो गया है, जिसको रिवॉर्ड देते हुए मैंने जो थोड़ी एक चॉकलेट खाई थी दोपहर में। तो मतलब कि रीइंफोर्समेंट दी थी स्वयं को, ताकि मैं आगे भी अपनी इस प्रक्रिया को काम में प्रचलन में ले चलूँ। आप लोग ये कह सकते हो, अगर हिंदी भाषा में कहूँ तो हमारी तैयारी में सबसे पहला टारगेट जो होगा हमारा हिस्ट्री होगा, सेकंड होगा पॉलिटिकल, थर्ड होगा साइकोलॉजी, फोर्थ होगा फिजिकल एजुकेशन। नहीं, फर्स्ट और सेकंड जो है पॉलिटिकल और हिस्ट्री होंगे, फिर साइकोलॉजी, इंग्लिश और फिजिकल। तो कुछ इस हिसाब से पढ़ने वाले हैं। तैयारी जो है आज से शुरू करने वाले हैं। तो देखते हैं कि कैसा होता है अपना। अब मतलब कि तैयारी जो है डेली करनी है, और इसके साथ ही साथ में मैं जो है NDA का भी पढ़ने वाला हूँ। तो NDA की मैथ की तैयारी शुरू करते रहेंगे। उसी टीचर से पढ़ेंगे एक्सुहब NDA। मैं जो है सिंपली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग, एंड फॉर GAT आई एम गोइंग टू means in this exam I had answered more than 90 questions. So for the next exam, for the welfare of our marks, I am going to buy a GAT book, so that I will be writing answering all the questions with the including the English and also the current affairs. I am not going to study, so that my marks मतलब कि संतुलित हो जाए सारे नंबर, अगर मैं करंट अफेयर नहीं भी करता हूँ। तो कुछ इसी हिसाब से पढ़ने वाले हैंगे। सबसे पहले मैथ कंप्लीट करते हैं NDA की, उसके बाद फिर GAT की बुक तो बाद में भी ले लेंगे 15-16 दिन पहले, तब भी हो जाएगी। तो अपनी मैथ पढ़नी हैगी और इसके साथ में अपने स्कूल का पढ़ना हैगा। प्लान कुछ यही हैगा कि काफ़ी आसानी से पढ़ेंगे, और इसके साथ में ही मतलब कि आज तो पूरा वीडियो भाई बैठ के ही बन गई। वो मेरे को सिंपली जो है मतलब ज़्यादा स्कोर करने होंगे भाई नंबर। अब मेन टारगेट यही होने वाला है। साथ ही साथ में फिजिकल का अगर मैं बताऊँ तो मेरे को जो है ऐप्स पे वर्क करना है, क्योंकि ऐप जो है मेरे कभी भी मोटे मोटे नहीं आए, मतलब कि साफ झलके जो। तो अब की बार जो है वही ऐप्स बनाने वाला हूँ भाई मैं, और साथ ही साथ में शोल्डर्स थोड़े बहुत। तो अपनी रनिंग जो है बहुत तगड़ी होने वाली है अब की बारी, क्योंकि वर्कआउट जो है तगड़ा कर रहा हूँ मैं। और आज भी अपनी स्प्रिंट्स आएंगी। आज कुछ 6 स्प्रिंट्स मारेंगे 1000 मीटर की, देखते क्या होता है। चलो साइको का पेपर ये रहा, देखो मेरे हाथ में सेट 1 था मेरा। साइकोलॉजी का कोड आएगा 0.37, मतलब 037। सेक्शन ए में कुछ टिक द मार्क्स के क्वेश्चंस थे, कुछ अपने 12 आए थे। और एक कमाल की बात आएगी कि अपने साइको का पेपर 70 नंबर का हुआ, मतलब कि 70 का ही आएगा बोर्ड्स में भी। और अगर मैं इसमें तुम्हें क्वेश्चंस दिखाऊं तो मतलब कि होप करता हूँ पढ़ लिया होगा इतने टाइम में। चाहे फर्स्ट चैप्टर से, सेकंड चैप्टर से, थर्ड चैप्टर से, फोर्थ चैप्टर से क्वेश्चंस आ रही हैं। और फर्स्ट चैप्टर से जो है मतलब मैम ने इनडायरेक्टली पूछ रखी थी सारे। तो तुम लोग कह सकते हो कि हाँ भाई इनडायरेक्ट कॉम्पिटेंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रही है, क्योंकि जिसको अगर अच्छे से मतलब कि सारी चीज़ें पता होंगी ना बुक के बारे में, चैप्टर के बारे में, वही कर पाएगा। क्योंकि ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। और ऊपर से हर स्कूल वाले जानबूझ के ना मुश्किल पेपर बनाते हैं भाई, मतलब कि ये पैराग्राफ तो मतलब तुम कह सकते हो कि मुश्किल इसलिए बनाते हैं ताकि बच्चे जो है आगे पेपर के लिए तैयार हो जाएं। तो
हाँ मतलब काफ़ी मतलब ठीक ठाक ही आ रखा था पेपर। अब कल जो है अपने को मार्क्स जो है कल की वीडियो में पता चलेंगे, तो कल जो है मैं तुम लोगों को अपने मार्क्स बता दूंगा, मतलब कि सब्जेक्ट में कितने आए और उस हिसाब से फिर हम लोग आगे जो है उन्हीं सब्जेक्ट्स पे जोर डालेंगे जिन पे हम कमज़ोर रहेंगे। मतलब ठीक ठाक चल रहे हैं सारे, तो कल के मार्क्स देखे पता चलेगा कितना स्कोर किया। मेरे को जो सबसे ज़्यादा उम्मीद हैगी वो हैगी भाई इंग्लिश से, क्योंकि इन इंग्लिश आई हैड रिटन मोर देन 3 शीट्स। You can say that my English exam had gone well, so I am hoping to score more than 73 or 74. So let's see how much I score in English. भाई देखो ये बिल्ली के जो है चोट लग गई हैगी पीछे वाले पैर में, देखो कितना ज़्यादा खून बह रहेगा। मतलब भाई इसका नखून टूट गया कुछ और उसमें से बस बहुत खून निकल रहा है। अभी इधर आ ही नहीं रही, इधर आती तो दवाई लगा देते इसके। देखो यहाँ पे आई हुई थी, पैर और पकड़ने नहीं दे रही, मतलब देखो पूरा खून कर दिया यहाँ भी, नीचे भी पूरा खून कर दिया। दूध पिलाया था भी इसी, और देखो वहाँ बैठी हुई, वहाँ भी खून ही खून, मतलब बड़ा ज़्यादा खून आ रहा है भाई, ना खून टूट गया उसका। बेचारी में आऊँ यार, चोट लग गई, कुछ कर भी नहीं पा रही। अपनी म्याऊ देखो आ गई हैगी, ये बैठी हुई, ये आगे कर रही है तू। हाँ इसको ना मैं हाथ में भी पिला लेता हूँ देखो, लेकिन मैं इतनी देर तक खड़ा नहीं रहूँगा यहाँ पे इसको हाथ में पिलाता हुआ दूध, इसलिए तुम नीचे आके पियो, ठीक है। म्याऊ 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 बहू नीचे आके भी